ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ But God has given us the privilege to be born in His family. लेकिन परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि उसके घराने में जन्म लेने का। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕੀਏ Not only that, Romans 8:16 and 17. इतना सिर्फ नहीं, रोमी 8 का 16 और 17। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 16 ਤੇ 17 ਹੈ Romans 8:16 and 17. रोमी 8वां अध्याय 16 और 17 ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ वचन। ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 16 ਤੇ 17 ਹੈ The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ Listen carefully. ध्यान से सुने, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ He has given us the privilege to be born in His family. उसके परिवार में, उसके घराने में जन्म लेने का सौभाग्य हमें मिल गया। ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ Then He gave His own Spirit that witness that we are the sons of God. और उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दी जो गवाही देती है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ And through the difficulties and troubles in our life, what is He doing? और हमारे जीवन में कष्ट और समस्याओं को आने देने के द्वारा वो क्या कर रहा है? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 18वां वचन। 2 Corinthians, yes. ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 18 ਹੈ 2 Corinthians 3:18. दूसरा कोरिन्थी 3 का 18। ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 3 ਦੀ 18 ਹੈ But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. परंतु जब हम सब के उगड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ Many people asking this, if we are serving the living God, if He loves, why all these problems we are facing? कई लोग सवाल पूछते हैं, हम अगर जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं, उस पर विश्वास कर कर उसके साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन में इतने कष्ट और समस्याएं क्यों? ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ You do not know the program or purpose of God, therefore you ask this question. प्यारे मित्र, आपको अभी तक परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आए, इसलिए दुविधा में हैं, इसलिए आप इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ I do not blame you. मैं आपको दोष नहीं देता। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ All the people of the world are worshiping God so that they may have a trouble-free life on this earth. सारे जगत में जितने भी लोग हैं, हर कोई परमेश्वर की आराधना और स्तुति या विश्वास इसलिए करता है ताकि कैसे ना कैसे इस संसार में सुखमय जीवन बिता सके। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ But when you opened your heart, He came in you, you became a chosen person. लेकिन प्यारे मित्र, जब आपने हृदय का द्वार खोला, वो आपके हृदय में आ गया और आप चुने गए वंश बन गए। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵੰਸ਼ ਬਣ ਗਏ Then you ask this question, if I am a chosen person, where I see that quality of that chosen person? Then you ask this question, if I am a chosen person, where I see that qualities or that glory
of that chosen person. तब आप सवाल पूछेंगे, मैं ये चुना हुआ वंश हूं, तो मेरे अंदर वो चुने हुए वंश की वो खूबी या वो गुण कहां? तो फिर तुम सवाल पूछोगे कि जेकर मैं चुनिया होया वंश हां तो मेरे अंदर वो चुने हुए वंश दे जेड़े गुण है खूबियां वो किथे हन? You want to see the difference of a chosen person and another person while you are on this earth. आप चाहते हो कि इस संसार में रहते समय ही चुने गए आप और दूसरे के बीच का फर्क देखना चाहते हैं। तुसी ए चाहते हो कि तुसी इस दुनिया विच रहंदे ही जे जो असी चुने गए हैं अते जो नहीं चुने गए हैं उन्हां विच जो फर्क है उसनु इस दुनिया विच रहंदे वेखना चाहते हो। Definitely differences are taking place. You can see the difference. The problem is your eyes are not spiritual. प्यारे मित्र, आप में और बाकी लोगों में जरूर बहुत अंतर आ रहा है, आपको दिखता नहीं, कारण आपकी आंखें आत्मिक नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ताडे विच अते दुनिया दे बाकी लोकां विच अंतर आ रहा है पर तानू अजे तक दिस रहा नहीं। क्यों? क्योंकि अजे तक ताड़ी अखां पूरी तरह खुलियां नहीं। If you change your glass of material things and put the glass of spiritual things, you will see the difference. जब आप शारीरिकता की अपनी आंखें अपने चश्मे उतार कर आत्मिक चश्मे पहन लोगे तो आपको बातें साफ दिखने लगेंगी। जदों तुसी शारीरिक ऐनक ला के आत्मिक ऐनक जड़ी ओ ला लोगे फिर तानू साफ जड़ा है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। Through your physical eye, you cannot understand the great riches of God. आपके शारीरिक आंखों के द्वारा परमेश्वर के उस अनंत धन को आप देख नहीं सकते हैं। तुसी अपनी शारीरिक अखां दे द्वारा परमेश्वर दे ओ धन नूं तुसी वेख नहीं सकदे हो। God has given me the grace to remove my material looking glass and put a spiritual glass, and I could see the glorious thing God has prepared for me. मेरे को ये सौभाग्य मिल गया कि मेरी शारीरिकता से भरी हुई चश्मे को हटाकर उन आत्मिक चश्मों को पहन लूं, जिसके कारण परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ वो असीम धन को मैं देख सकूं। मैनू ये अच्छा मौका मिल गया ताकि मैं अपने शरीर के चश्मे नू ला के आत्मिक चश्मा जड़ा है वो ला लवा ताकि मैनू ओ धन जो असीम बेहद धन है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसनु देख सका। Here Paul says in 2 Corinthians 3 verse 18, through all the problems we are changed into his image from glory to glory. पौलुस दूसरी कुरिन्थी तीसरे अध्याय में कहता है हमारे जीवन में आने वाले हर एक कष्टों के द्वारा हम अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। इसलिए पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय 18 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Every family problem, every financial problem, every neighbor's problem changes me into his likeness. मेरे जीवन में आने वाले हर एक समस्या, चाहे वो संसारिक आर्थिक हो पारिवारिक हो या मेरे पड़ोसी के द्वारा आने वाली समस्याएं मुझे अंश अंश करके बदलने में मदद करती हैं। मेरे जीवन में हर तरह की आने वाली समस्या, चाहे वो घर की समस्या हो, चाहे पैसे की समस्या हो, चाहे गवांढियों के वालों समस्या हो, वो मैनू अंश अंश करके बदल दिया जांदियां। I do not know if there is anyone here sitting who have suffered like me. I do not know. मुझे नहीं मालूम आज रात इधर कोई बैठा है जिसने मेरी तरह कष्ट उठाया हो। मैनू नहीं पता कि इत्थे आज रात इत्थे बैठे होया विचों कोई भी इहो जिहा व्यक्ति होवेगा जिन्हें मेरी तरह दुख झल्लिया होवेगा। I feel that I am the most troubled man, suffered man sitting here with before you. मुझे निश्चित मालूम है आज रात जितने भी लोग बैठे हैं इन सब में सबसे ज्यादा समस्याओं को झेला हुआ, मुसीबतों के बीच में गया वो व्यक्ति मैं ही हूं। मैनू इस चंगी तरह पता है कि आज रात जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं इन्हां सारियां तो ज्यादा समस्यावां नूं अते दुखां मुसीबतां नूं झल्लिया होया व्यक्ति मैं ही हां। 15 times I have been persecuted mercilessly
drawn to death several times. 15 बार मुझे बिना दया के मारा गया है और मौत के कगार तक कितने बार पहुंच चुका हूं. और 15 बार मैनू बिना रहम कीते मार कुट कीती गई है. कितनी बार मैं मौत दे मुंह तक पहुंच गया. How many times I starved days and days with myself and my family. कितने अवसरों पर मैं अपने परिवार के साथ भूखा रहा. किन्ने मौकियां ते मैं अपने परिवार दे नाल भुखा रहा. How many times blames upon blames, allegation upon allegation comes upon me. कितने बार मेरे ऊपर एक आरोप के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा आरोप मेरे ऊपर उंडेला गया. और कितनी बार मेरे ते एक तो बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा इस तरह दोष ते दोष लाए गए. How many times I drawn to death but through sickness. कितने बार बीमारी के द्वारा मैं मौत के दरवाजे तक पहुंच गया. कितनी बार बीमारियां दे विच मैं मौत दे मुंह विच पहुंच गया. Turning back when I see all those things, it brought me only glory, spiritual glory. जब मैं आज इस क्षण मुड़कर देखता हूं तो मेरे जीवन में आई ये हर एक बातों ने मुझे उस तेजस्वी महिमा के नजदीक तक ला दिया है. पर मैं जब मुड़ के उन्हां पलां नूं उन्हां दिनां नूं वेखदा हां तो मैनू याद आउंदा है कि मेरी जिंदगी विच आउण वालियां सारियां समस्यावां ने मैनू ओ तेजवान प्रताप दे लियागे लिया दिता है. Oh chosen people, your blessing is not material. Your blessing you cannot see with a carnal eye. But when your eyesight is changed in your spiritual eye, you will rejoice for every problem, every difficulty. ये चुने गए वंश आपके जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं को आज आप अपने उसके पीछे छिपी हुई आत्मिक आशीषों को आप अपनी शारीरिकता से भरे हुए आंखों से नहीं देख सकते. लेकिन जब अपनी आत्मिक आंखों खुल जाएंगी तब परमेश्वर ने रखा हुआ असीम धन को आप देख सकेंगे. हे चुने हुए वंश दे लोगो, जद ताड़ी जिंदगी विच एक तो बाद एक समस्या आ रही हन, उन्हां दे पिछे जो परमेश्वर ने ताड़े लई सदीपक धन या आशीष रखी हुई है, उस आशीष नूं तुसीं इन्हां शारीरिक अखां दे नाल नहीं वेख सकदे हो, सगों कि आत्मिक अखां दे नाल वेख सकदे हो. I pray that through the Holy Spirit, the things that blinded your spiritual eye may be burned away and your spiritual eye may be opened brightly to see the things which God has prepared for you. मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खुलने से रोकने वाली हर एक वस्तुएं जलकर हट जाएं, ताकि आपकी आत्मिक आंखें और प्रकाश के साथ परमेश्वर ने रखी हुई आशीषों को स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर देखने लगे. और मैं चाहूंगा अते प्रार्थना दे द्वारा कि जो भी ताड़ियां आत्मिक अखां नूं पूरी तरह खुलण विच रुकावट पाउण वालियां हर प्रकार दीयां वस्तुआं जड़ियां हन वो पवित्र आत्मा दी अग दे द्वारा पूरी तरह जल जाण, ताकि ताड़ियां अंदर दी अखां पूरी तरह खुल जाण अते ताड़े लई जो आत्मिक धन परमेश्वर ने सदीपक धन रखिया होया है वो अच्छी तरह तानूं नजर आए. What is the prayer of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है? प्रभु यीशु मसीह दी प्रार्थना की है. Well, John chapter 17 verse 21 to 23. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 21 से 23वें वचन तक. यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 21 आयत तो लेके 23 आयत तक. John 17 21 to 23. यूहन्ना 17 21 से 23 तक. यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 21 आयत तो लेके 23 आयत तक. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may know, believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I given them, and they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and the world may know that thou hast sent me, and thou hast loved them as thou hast loved me. कि वे सब एक हो जाएं, जैसे तूने पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है. वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जाएं जैसे कि हम एक हैं, कि उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा. जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा. जो ओ सब इको होन, जिस तरह है पिता तू मेरे विच अते मैं तेरे विच हां, जो ओ भी साडे विच होन,
ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਸੱਤ ਮੰਨੇ ਭਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਭਈ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ Here, Jesus Christ again repeats the purpose and plan of God. इधर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को एक और बार दोहराते हैं इधर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ Father, just like I am in you, let them also be in us. पिता जैसे मैं तुझ में हूँ वैसे ये भी हम में एक हो जाएं कि हे पिता जिस तरह मैं तेरे ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ Again in Revelation chapter 3 verse 21, Jesus says, एक और बार प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 21वें वचन में प्रभु यीशु कहते हैं एक और गाल प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆय ਉਸ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Revelation 3:21. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21वां वचन प्रकाश ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆय ਉਸ ਦੀ 21 ਆਇਤ To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ I am going to close it very soon. मैं बड़ी जल्दी समाप्त करने जा रहा हूँ मैं बहुत ही जल्दी समाप्त करने जा रहा हूँ It is Jesus' desire that you and I become qualified to sit equal with him on his throne. प्यारे मित्रों प्रभु यीशु के अंदर हृदय की तमन्ना है कि आप और मैं उसके साथ सिंहासन में अनंत काल बैठने के लिए योग्य बन जाएं मेरे प्यारेओ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ But we read in Philippians chapter 3 verse 20 and 21. हम फिलिप्पी 3 अध्याय 20 और 21वें वचन में पढ़ते हैं ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 20 ਤੇ 21 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा क्यों जो ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਏਗਾ Beloved, a time has come, this body is going to be changed in the likeness of his own body. प्यारे मित्रों समय नजदीक आ रहा है हमारा ये शरीर परमेश्वर के उस रूप में उसके उस कद में बदल जाएगा मेरे प्यारो समा नजदीक आ गया है कि साडा ए दीनहीन शरीर जिहड़ा है ओदे तेजस्वी रूप विच बदल जाएगा I read one last word. मैं एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ मैं एक आखिरी वचन पढ़ना चाहना हां 1 John chapter 3 verse 1 to 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 तक पहला यूहन्ना दी पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत तो लेके 3 आयत तक पढ़िए Please listen carefully. ध्यान से इस वचनों को सुने ध्यान दे नाल इस वचन नु सुनिए Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself even as he is pure. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि हमने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि
उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वह है, और जो कोई उसकी ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। हे ਪਿਆਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। Among believers, there are two groups. विश्वासियों के बीच में हम दो झुंड को देख सकते हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। One group asking God to get material blessing and to escape from all problems. एक झुंड संसारिक आशीषें मांगता है और सब समस्याओं से बचना चाहता है। ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। But there's a small group who says, Lord, let trouble comes, grant me grace so that I may face all problems and become like you. लेकिन एक छोटा सा शेष है, छोटा सा झुंड है, जब उसके जीवन में समस्या आता है वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु अनुग्रह दे ताकि इसके ऊपर मैं इन समस्याओं को सामना कर कर तेरे कद तक बढ़ सकूं। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦ ਕਾਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। It is easy for God to remove all your problems in a moment, but you will never become like him. प्यारे मित्रों, आपके जीवन में आने वाली समस्या को आपके जीवन से हमेशा के लिए हटाना उस परमेश्वर के लिए मुश्किल काम नहीं, एक ही क्षण में कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो आप उसके तुल्य बनने की जो योजना है, जो मौका है, वो हमेशा के लिए हाथ से चला जाएगा। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਟਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। Loving you, he allows all this problem so that you and I may become like him. प्यारे मित्रों, आपको प्यार करते हुए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक एक कष्ट को आने दिया, समस्या आने दिया। एकमात्र इच्छा उसकी यही है कि आप इन कष्टों के द्वारा उसके कद तक बढ़ जाएं। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। I think I am running my last leg of race. मुझे लगता है मैं अपनी दौड़ के आखिरी क्षणों में पहुंच गया हूं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। From here, I tell you, every problem, every difficulties, every hardship, every blame, transform you like him. मैं अपने जीवन के इस दौड़ के इस स्थान में खड़े होकर मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में आने वाले हर एक कष्ट, हर एक समस्याएं, हर एक परिस्थिति आपको उसके स्वरूप में बदलने के लिए मौका देता है, सहायता करता है। मैं अपनी दौड़ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। When you allow yourself to go through this problem, then you will start saying, I don't find any love to the material things, material comfort, name or pleasure, anything. जब आप अपने आप को इस कष्टों के बीच में से जाने के लिए सौंप देते हैं, फिर आप कहेंगे मुझे संसारिकता आकर्षित नहीं करती, मुझे संसार का सुख और आराम अब और खींचता नहीं है।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ When you are in the furnace of affliction, in the midst of troubles, Father says, yes, He is coming. He will come and He will be part of my body. जब आप कष्ट की भट्टी में हैं, दर्द सह रहे हैं, पिता परमेश्वर आपको देखकर बोलता है, सच है, ये मेरी उस तमन्ना को पूरी करेगा, ये मेरी आशा पर खरा उतरेगा, ये मेरे साथ अति शीघ्र सिंहासन में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। जब ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਨੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਸ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ Then He will say, He is my son. तब वो कहेगा, ये मेरा पुत्र है। तब वो कहेगा ये मेरा पुत्र है। Sisters are also spiritually sons. बहन लोग भी आत्मिक तौर पर पुत्र हैं। बहना भी आत्मिक तौर पे पुत्र हैं। Majority of the believers want material things. A very few are marching forward to become like Him. बहुसंख्यक विश्वासी संसारिकता चाहते हैं, संसारिक आशीषें चाहते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से झुंड हैं जो अनंत काल की ओर अपना यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी, ढेर सारे विश्वासी ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। What's your intention tonight? आज रात आपके हृदय के अंदर की तमन्ना क्या है? ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? With what desire you came here? आप धारीवाल में इस हॉल में किस इच्छा के साथ आए हो? ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? Loving God tells you, walk through the path of suffering and become my glorious son. प्यारा परमेश्वर कहता है, कष्ट के मार्ग में चल और मेरा प्रिय पुत्र है करके प्रमाणित कर। और प्यारा परमेश्वर कह रहा है कि कष्ट दे राह ते चल अते ए सबूत दे कि तू मेरा प्यारा पुत्र है। Very soon we'll fly away. बड़ी जल्दी हम उड़ जाने वाले हैं। बड़ी जल्दी ही असी उड़ जाने वाले हैं। Very soon we'll fly away. बड़ी जल्दी हम उड़ने वाले हैं। बड़ी जल्दी असी उड़न वाले हैं। Very soon we'll say goodbye to the world. बड़ी जल्दी हम इस पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कहने जा रहे हैं। असी बड़ी जल्दी ही इस धरती नु सदा दे लई अलविदा कहन जा रहे हैं। Very soon we are going to say to the riches of the world goodbye. बड़ी जल्दी हम इस संसार के ऐश और आराम और धन को अलविदा कहेंगे। असी बड़ी छेती ही इस संसार दे सुख विलास नु ऐश प्रस्ती नु अलविदा कहांगे। Kneel down घुटना टेक लें, गोडे टेकिए and pray. सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। सिर झुकाइए, प्रार्थना करिए। Those friends on the chair, you can remain on the chair. प्यारे मित्र जो कुर्सी में बैठे हैं, आप कुर्सी में ही बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों जेड़े कुर्सियां ते बैठे हैं कुर्सी ते बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। We are going to sing a song number 100. हम इस गाने की किताब से गीत नंबर 100 गाने जा रहे हैं। असी इन्हां गीतां दी किताब विचों गीत नंबर 100 गाउण जा रहे हैं। दुनिया की डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अपना घर। इस गीत के किताब में गीत नंबर 100 हम मिलकर गाने जा रहे हैं। इस गीत की किताब विचों गीत नंबर 100 मिलके गाउण वास्ते जा रहे हैं। गाओ। के दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर।
अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। उसके बाद मैं इधर बैठकर जिनको प्रार्थना चाहिए उनके लिए प्रार्थना करूंगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। मैं इधर नीचे बैठूंगा। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। उस वक्त आप लोग रश ना करें। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਾਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अगर आप बीमार है थक्का करेगा तो आपको और परेशानी हो जाएगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ। मैं आखिरी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के बाद ही इधर से जाऊंगा। मैं आखिरी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने तो बाद ही इधरों जावांगा। इसलिए बीमारियों के लिए प्रार्थना करने वाला ऐसा सोचे दूसरा आगे जाने दो। इसलिए बीमारी के लिए प्रार्थना कराने वास्ते जो व्यक्ति आ रहा है उसने ये सोचना कि मेथों पहला दूसरा चला जाए। ये जरूरी नहीं है आज ही सब प्रार्थना कराए। ये जरूरी नहीं कि आज ही सारा ने प्रार्थना करा ले। प्रभु की आमद देरी है तो हर दिन शाम को बीमारों के लिए प्रार्थना होगा। प्रभु की आमद विच देरी है तो हर रोज शाम के समय बीमारों के लिए प्रार्थना होगी। आज थोड़ा लोग प्रार्थना कराएं कल बाकी लोग प्रार्थना कराएं। आज थोड़े लोग प्रार्थना करो बाकी कल प्रार्थना करो। ऐसा रश ना करें। इस तरह जड़ा रश ना करन भीड़ ना बनाओ। दूसरा खाने के लिए अभी जाने वाले हैं। और खाने की गल उत्ते भी ध्यान दइए। विश्वासियों की तरह जाए। विश्वासियों की तरह जाइए। ये नहीं मैं जल्दी खाकर जाकर सो जाऊं। तो ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी जाके खाना खा जावा तो जाके सो जावा। मेरा भाई पहले जाकर खाने दो। मेरा भरा या भैन पहला जाके खाए। मेरा बहन पहले खाने दो। मेरे भैन भरावां नूं पहला खाण दियो। बाद में वो जाकर आराम करो मैं आराम से पीछे खाऊंगा। वो खाना खा के जाके आराम करे मैं बाद में जाके खाना खाऊंगा। ऐसा जब आपको देखते वक्त हमारा यीशु खुश हो जाता है। जब तुसी इस तरह करोगे तो ये देख के साडा यीशु मसीह खुश हो जाता है। कौन सा बात आपको पहले प्रार्थना कराने के लिए पहले खाना खाने के लिए मजबूर करता है? केड़ी गल तानू पहला जड़ी प्रार्थना कराउण दे लई या पहला खाना खाण दे लई मजबूर करदी है? अपना खुद ही। अपनी खुद ही मैं। अपना खुद ही। अपनी खुद ही या मैं। अपना खुद ही को फेंक कर अपनी खुद ही नु जड़ा वो सुट दिए। हालेलुया। हालेलुया। आप पहले खाना के लिए भागेंगे तो शैतान देखेगा मेरा बंदा सब आगे आ गया है। जब तुसी खाना लैन दे लई पहला भजोगे या बीमारी तो प्रार्थना कराउण दे लई बाकियों नूं धक्के मारदे हुए अगे आओगे तो शैतान वेख के कहेगा मेरा बंदा वेखे अगे जा रहा। शैतान बोलेगा मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। शैतान वेख के कहेगा मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। लेकिन आप दूसरों को आगे कर रहा है। पर जेकर तुसी दूसरे नूं अगे करोगे तो शैतान क्या बोलेगा? शैतान की आखेगा ये मुझे लात मार कर आगे जा रहा है। ये तो मैंने ठुड्डा मार के परा छोड़ दे अगे जा रहा है। इनको अपना मतलब का नहीं सिर्फ यीशु का मतलब है। ये तो अपने मतलब दा नहीं सको कि यीशु मसीह दे मतलब दा। पहला सदी के लोग अपना सब कुछ बेच डाल करके लोगों को सेवा के लिए कर दिया। और पहली सदी के लोगों ने अपना सब कुछ बेच के दूसरा की सेवा के लिए देता। हालेलुया। हालेलुया। अपना घर अपना व्यवसाय सब बेच करके दूसरों को देकर यीशु के पीछे गया। उन्होंने अपने घर भी अपनी जमीना भी अपना सब कुछ बेच के दूसरा के लिए दे देता। शैतान हमारा खुदी को बंडल करके लेकर भागने दो। शैतान को हम सबों का खुदी का बंडल लेकर भागने दो। साडे सारिਆਂ ਦੀ खुदी या मैं दा जेड़ा बंडल है ओनू लेके जो भजन दियो। उनका ट्रक भर कर ले जाने दो। उनको ट्रक भर के ले जा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। आई अभी प्रभु का दास आकर प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे फिर मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। और प्रभु के दास आके प्रार्थना करके सभा नु समाप्त कर दे उस तो बाद मैं थले बैठ के बीमारां दे लिए प्रार्थना करांगा। सुबेरे ठीक 9 बजे बाइबल क्लास। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आंखें बंद करें सर को झुकाएं प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस सभाओं की पहली शाम में ही आपने अपनी इच्छा को और इस योजना को बताकर हम में से प्रत्येक के हृदय में प्रभु जो एक खटखटाहट दिया प्रभु उसके हम धन्यवाद करते हैं। आप चाहते हैं कि हम जो सृष्टि है प्रभु तेरी अद्भुत योजना में जिसमें तूने हमको शामिल किया है
तेरे वचन के द्वारा तूने हमें नया जन्म देकर अपने घराने में शामिल किया है। अब तू चाहता है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता के हर रुकावट और भेद को, हर अंतराल को दूर करते हुए एक हो जाएं। प्रभु इसके लिए हम में से प्रत्येक को तो होने दे तेरी इस पवित्र आत्मा की आग की नदी में। प्रभु उस नदी में हमको छाने दे प्रभु जी, एक एक जीवन से वो आग का नदी बहने दे प्रभु जी, ताकि हर कमी घटी, हर रुकावट, हर वो बात जो प्रभु सृष्टिकर्ता के साथ एक होने में प्रभु बाधक बनती है जाती रहे। इन दिनों में प्रभु तेरा फजल एक एक पर हो जाए, तेरा वचन प्रत्येक हृदय की पट्टिका पर लिख दे प्रभु, ताकि उठते बैठते चलते फिरते इस वचन पर मनन करते हुए प्रभु ध्यान करते करते आग में हड्डियों में आग सुलग जाए। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति जिस प्रकार सनातन काल से है, उसी प्रकार आज भी इन पवित्र संतों और कलीसिया के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे।